ہے، اپنی نمائندگی بھی رکھی ہے۔ ہر الیکشن میں ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی اکثر میٹنگیں میں اٹینڈ کرتا ہوں جا کر۔ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جب کبھی ہمارے کسی جماعت کا نام نہیں ہوتا تھا، آج الیکشن کمیشن اور پاکستان کہ جب جو بھی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر ہماری سیٹ باقاعدہ ریزرو ہوتی ہے تو ہمارا نام لکھا ہوتا ہے پاکستان رائٹ پارٹی۔ ہمارا منشور، ہمارا کال ماشاءاللہ عبدالحکیم صاحب نے بڑے تفصیلی انداز میں پیش کیا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور یونیورسٹی کا دورہ کیا۔ صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان تو بن گیا ہے، پاکستان کا آئین کیا ہوگا؟ انہوں نے بلا تردید بلا تردد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ پاکستان کو آئین کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کا آئین وہی ہے جو قرآن و سنت کا آئین ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کا آئین تو قائد اعظم دے کر چلے گئے اور وہ آئین بھی بن گیا۔ جس طرح عبدالحکیم صاحب فرما رہے تھے 295A آرٹیکل 295B آرٹیکل 295C آرٹیکل 298A، اب یہ قانون کا حصہ تو ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہے۔ وہاں جب ملاقات ہوگی میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم کے سائے کے نیچے اللہ ہمیں ضرور جگہ عطا فرمائیں گے کہ جب رسول اللہ کی ختم نبوت کو خطرات لاحق تھے تو میرے امتیوں نے اپنی ووٹ کی پرچی برادریوں سے بالاتر ہو کر، علاقائیت سے بالاتر ہو کر اور پارٹیوں سے بالاتر ہو کر میری ختم نبوت کی ووٹ کی پرچی کاش کی ہے۔ وہاں آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ صاحب آپ نے ہمیں وہاں دعوت دی، ہم نے آپ کی دعوت قبول کی، آج ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا ہے۔ اس سے قبل ہم نے جن لوگوں کو ووٹ کی پرچی دی، میں مخالفت سیاست کا قائل نہیں ہوں لیکن ٹرانسجنڈر بل تو پیش ہوئے ہیں اور رسول اللہ کا دشمن گرفتار ہوا۔ آپ لوگوں نے دیکھا، میڈیا میں دیکھا، گرفتار ہونے کے بعد کوئی بھی جھوٹا مدعیان نبوت کوئی بھی تھا، اس کے بعد اس کا کیس چلا، FIR کٹی، ضمانت ہوئی اور فائل بند ہوئی، شیخ صاحب فائل بند ہوئی اور وہ جہازوں پہ بیٹھ کے یورپ کنٹریوں میں چلا گیا، وہاں اس کو نیشنلٹیاں ملی۔ تو اس سے کیا پیغام ملا؟ جو جہل قسم کے لوگ ہیں، جو باقی دین کے دشمن قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے کہا یار نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے سے تو جہازوں پہ بیٹھ کے نیشنلٹیاں ملتی ہیں، تو یہ رسول اللہ کی دشمنی کا راستہ ہموار کرنے کا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں عزت دی تو کوئی بھی گستاخ رسول، سب سے پہلے ہم کسی کو گستاخی کرنے ہی نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے کی تو ہمارے ابا و اجداد نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جو 74 میں یہ آئین بنایا تھا، ہم اس آئین پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے انشاءاللہ۔ کوئی بھی گستاخ رسول پاکستان کی دھرتی سے بھاگ کر نہیں جا سکے گا انشاءاللہ۔ وہ یا پھانسی کے پھندے پہ جھولے گا یا سزائے موت کی کال کوٹھیوں میں گل سڑ کے مر جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس کو ملک سے نہیں بھاگنے دیں گے انشاءاللہ، سب کو انشاءاللہ۔ اس لیے یہ باتوں سے نہیں ہوگا، یہ نعروں سے نہیں ہوگا، یہ ووٹ کی پرچی کاس کرنے سے ہوگا۔ حضرت امام حسین کرب و بلا کی وادی میں ایک ظالم جاور کے پنجہ مروڑنے کے لیے میدان کارزار میں نکلے، وہاں کے لوگوں نے کہا ہماری محبت، ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ تو بتاؤ ان کی بدنامی ہوئی، جو بھی کہتا ہے کوفی، کوئی غداری کے لوگ کہتے ہیں نا کوفی، تو ہم نے انشاءاللہ ہر ظالم کا پنجہ مروڑنے کے لیے پاکستان رائے حق پارٹی کا ساتھ دینا انشاءاللہ، سب کو انشاءاللہ۔ اور ملک میں ایجوکیشن کے لیے، معیشت کی مضبوطی کے لیے، زرعی اور صنعتی انقلاب کے لیے پاکستان رائے حق پارٹی میدان میں نکلی ہے۔ بالخصوص سود کی جو لعنت ہے، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ غور کریں، کوئی اپنا گھر سود پہ چلانے کے لیے تیار نہیں ہے، سب محنت اور مزدوری اور حلال کی آمدن پہ یقین رکھتے ہیں، کوئی اپنا کارخانہ سود کے بنیاد پہ چلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا ملک، پورا ملک سود کی لعنت میں لپیٹ دیا گیا ہے۔ اندرونی بیرونی قرضوں پہ اتنا سود ہے کہ میرے اور آپ کے ملک کی آمدنی سود کے قرضوں میں جا رہی ہے اور عوام سسک کے خودکشیاں کر رہی ہے۔ آٹا کہاں جا رہا ہے، بجلی کہاں جا رہی ہے، پیٹرول کہاں جا رہا ہے، یہ سب کچھ ایک مصنوعی یہودی لابی کی ایک سازش سے ہمارے ملک کی عوام کا معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔
इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक पार्टी बरसर इक़्तिदार आके इंशाअल्लाह अजीज इस महंगाई के जिन को इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से, और किस तरीके से सूद जब खत्म नहीं होगा, कोई बंदा भी आ जाए, किसी अल्लाह के वली को भी बिठा दिया जाए, उस वक्त तक कुआं पाक नहीं होता जब तक कुएं के अंदर से वो मरा हुआ कुत्ता नहीं निकालेंगे। 1000 डोल नहीं, 1,00,000 डोल भी निकाल लो, अगर कुत्ता अंदर पड़ा है तो कभी भी साफ नहीं होगा। जब तक हम इस मुल्क से सूद की लानत को खत्म नहीं करेंगे, हमारी माइशत कभी मजबूत नहीं, करप्शन की लानत को खत्म नहीं करें, हमारा मुल्क मजबूत। 1 करोड़ की ग्रांट मिलती है और जहां पे गली पे लगनी होती है वहां पहुंचते पहुंचते वो बेचारी 20 लाख की रह जाती है, 80 लाख बीच में। तो इसलिए हमने इंशाअल्लाह ये वोट एक अमानत है, ये वोट एक अमानत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं सबसे ज्यादा अमानतदार हूं। आप सोच समझ के गहराई में जाके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होके, अगर जिस नुमाइंदे को आप मुंतखब करेंगे वो ऊपर जाकर ट्रांसजेंडर जैसे बिलों पे दस्तखत करेगा, खुदा की कसम क़यामत के दिन खुदा तुम्हें जरूर पूछेगा ट्रांसजेंडर बिल क्या है। हम जिन्स परस्ती के बिल, इस बिल की मुल्क को जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं। और आज आप सुबह से शाम तक देखें, सियासतदानों की आपस में लड़ाई है, बात जरा लंबी हो गई है। सियासतदानों की आपस में लड़ाई है, कोई कह रहा है ये गलत है, कि वो कह रहे हैं ये गलत है, आपस की जंग लगाई हुई है। इक़्तिदार की जंगों में, सीटें जीतने की जंगों में कोई ये नहीं कहता कि आज दालियां इतनी महंगी हो गई हैं, कोई ये नहीं कहता पेट्रोल महंगा हो गया है, कोई ये नहीं कहता बिजली को कैसे सस्ता करना है। यकीन जाने हमारे पड़ोसी मुल्कों में 8वीं तोनाई से बिजलियां पैदा हो रही हैं, कोई बिजली का बुरहान नहीं है। यहाँ एक जग बनाया जाता है, उसके ऊपर 1000 रुपए कास्ट आती है, चाइना से बन जाता है वो 200 रुपए का, इससे अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है। क्यों? एक सवाल है। पड़ोसी मुल्क है, उन्होंने अपनी बिजली को अपडेट किया है, 8वीं तोनाई से वो बिजली पैदा कर रहे हैं, हम डेमो के पीछे लगे हैं। तो ये पॉलिसियां इन हमारे मुंतखब नुमाइंदों के हक बनता है कि उस तरह की पॉलिसियां बनाएं। मैं एजुकेशन के हवाले से मैं बात करता हूँ। आप देखें जितने भी मुल्क हैं, सारे मुल्कों में, तरक्की याफ्ता ममालिक में, सब में निसाब तालीम कौमी जबानों में है। मैं अंग्रेजी की मुखालफत नहीं करता हूँ, अंग्रेजी को बतौर जबान सीखा जाए, चाइनीज को बतौर जबान सीखा जाए, जर्मनी को बतौर जबान सीखा जाए, लेकिन बतौर निसाब तालीम मेरे मुल्क के बच्चे के साथ जुल्म है। अगर जर्मनी बच्चा जर्मनी जबान में निसाब तालीम पढ़ सकता है, चाइनीज बच्चा चाइनीज जबान में निसाब तालीम पढ़ सकता है, तो तुर्की वाला बच्चा तुर्की जबान में निसाब तालीम पढ़ सकता है, इसराइल का बच्चा इसराइली जबान में निसाब तालीम पढ़ सकता है, तो फिर पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान की कौमी जबान में निसाब तालीम क्यों नहीं पढ़ सकता? मेरा सवाल है। ये इंग्लिश का एक दरमियान में ये बंद लगा दिया गया है। हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट यह है, निसाब तालीम दूसरी जबान के अंदर। तो इसलिए इंशाअल्लाह पाकिस्तान हक पार्टी इस रास्ते को खोलेगी इंशाअल्लाह। और अगला जुल्म देखो कि ये कौंसलों का काम जो है, गलियां बनाना, नालियां बनाना, इन ग्रांटों को पूरे 4 साल रोक के हम खराज तहसील पेश करते हैं, फिर भी वो गलियां बनाते हैं, लेकिन जब साल एंड होता है वो ग्रांटें फिर लग जाती है। इन नुमाइंदगान का, हमारे MP MNAs का ये काम था कि एजुकेशन को अपडेट करते, जहालत को खत्म करते। अब देखें, मैं बाबड़े की बात करता हूँ, मैं छोटा सा था, 50 साल का मेरी उम्र हो गई है। उस वक्त एक स्कूल बना, आज तक वही स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। उस स्कूल को डबल बिल्डिंग होनी चाहिए थी, ट्रिपल बिल्डिंग होनी चाहिए थी उस स्कूल की, और वहाँ हाई स्कूल होता और इस तरह बच्चियों का स्कूल होता और एक मेयारी स्कूल होते, ताकि हमारे बच्चे प्राइवेट। आज देखिए फेडरल बोर्ड में हमारे वाह कैंड में दाखिला लेने की, सारे हम यहाँ वाह कैंड के रहने वाले हैं, वहाँ मैं बच्चों को दाखिला, बच्चे मेरे लोग मेरे पास आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 5-10 बच्चे मैं दाखिल करवाता हूँ। लेकिन कितनी मुश्किल से किसी कर्नल की सिफारिश, किसी ब्रिगेडियर की सिफारिश, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बच्चे की तालीम के लिए ब्रिगेडियर और कर्नल की सिफारिश की जरूरत पड़े? बताओ दाखिला कितना मुश्किल है, मुश्किल है या नहीं? तो इस तरह के ये स्कूल आज से निसफ सदी पहले हाई स्कूल था, फिर हाई स्कूल ही है, 7 नंबर स्कूल है, 7 नंबर स्कूल ही है। तो निसफ सदी इतनी आबादी हमारी बढ़ी है, 200% आबादी आगे चली गई, लेकिन 6 नंबर स्कूल को 2 दफा 6 नंबर स्कूल होना चाहिए था, 7 नंबर स्कूल को 2 दफा 7 नंबर स्कूल होना चाहिए था। तो इस मैं और कोई इस तरह की बात भी नहीं करता। कोई बात करे कहते हैं यार ये ऐसी बातें कर रहा है। बुनियादी हमारे जो नुमाइंदे हम मुंतखब को ऊपर करके भेजते हैं, उनका ये काम है कि एजुकेशन में अपडेट करें, मईशत को मजबूत करें, और इस तरह की बुनियादी जो इंसानी जरूरियात हैं उन पर मेहनत करें। गंदम सस्ती हो, बिजली सस्ती हो, इस पे मेहनत करें।
डॉक्टर कदीर साहब का वो बयान मुझे याद है, यकीन जाने पूरे एडिशन में छपा, दुनिया से वो चले गए हैं, उनसे कहीं ज्यादा उनके शागिर्द बड़े बड़े डॉक्टर साइंसदान हमारे यहाँ मौजूद हैं, एटमी साइंसदान थे। कहते हैं हुकूमत थोड़ा सा मेरे साथ तावन करे, इतनी बिजली पैदा होगी एटमी तवानाई से कि अगली 6 सदियों तक, ये उनके अल्फाज में दोहरा रहा हूँ, 6 सदियों तक बिजली का बहरान भी खत्म हो जाए। लेकिन नहीं, ये हमारी की पोस्टों पे बैठने वाले हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, नहीं, मिर्जाई एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को तबाह करना चाहती है। पाकिस्तान और हक पार्टी खत्म नबूवत की बुनियाद पे ऊपर आकर इस मिर्जाई एस्टेब्लिशमेंट को, जो हमारे मुल्क की भी दुश्मन है, इस्लाम की भी दुश्मन है, रसूलुल्लाह की भी दुश्मन है, इस मुल्क की माइशत की भी दुश्मन है, हम उसको उनकी पोस्टों से दूर करेंगे इंशाअल्लाह। आपका साथ हमें चाहिए। पार्टी तहसील टैक्सला के ज़ेर एहतमाम हाफ़िज़ अब्दुल हकीम साहब, जो कि हमारे इस हल्का M57 और PP20 से उम्मीदवार भी हैं राय हक पार्टी के, उनकी बाकायदा हमने आज से इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी कर दिया है। और मैं बहुत इंतहाई मशकूर हूँ हमारे पंजाब के राय हक पार्टी के सदर शेख इकबाल साहब का, अपनी मसरूफियात में से इन्होंने वक्त निकाला, यहाँ तशरीफ़ लाए और चंद लम्हों में ही इंशाअल्लाह जनाब इस्लाम हज़रत मौलाना मुआविया आज़म साहब वो भी यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएंगे। हाफ़िज़ अब्दुल हकीम साहब ने राय हक पार्टी क्या इस मुल्क में चाहती है, राय हक पार्टी का इलेक्शन लड़ने का, असम्बलियों में जाने का क्या मकसद है, आप हज़रात के सामने तफसील के साथ रख दिया है कि राय हक पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ इस मुल्क में इस्तेहकाम चाहती है, गलबा इस्लाम चाहती है और गरीब के हुकूक की जंग लड़ना चाहती है। इस मुल्क को सूद जैसी लानत से पाक करना चाहती है। इस मुल्क की जड़ों को करप्शन ने खोखला कर दिया। करप्शन से पाक पाकिस्तान राय हक पार्टी का एक ख्वाब है और ये तब ही पूरा होगा जब अब आप हज़रात, आपके पास वोट की पर्ची की ताकत है, आप